बीते 9 वर्षों में आपका अपना एक्सपीरियंस एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी के भी अपने पोर्टफोलियो में काम किया है, क्या रहा है और कौन सी चुनौतियाँ आपने पिछले बीते 9 वर्षों में देखी और आगे भी आपको लगती हैं? हम तो 9 साल के जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम उपलब्धियां वगैरह उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि आपने इस प्रश्न पूछा, 9 साल उसमें 3 साल एकदम कोविड के वजह से, सेकेंड वेव के वजह से और रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से अनसर्टनिटीज बहुत बढ़ा। और स्ट्रिक्टली टू बी फेयर, 9 साल में ये 3 साल गिनना भी नहीं है, उतना चैलेंजेस सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया में हुआ। इसीलिए जो भी जितने भी हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ये मानना चाहिए कि 6 साल में ही हुआ, 9 साल में नहीं, क्योंकि 3 साल तो इतने सारे लॉकडाउन और सेकेंड वेव के वजह से काम करने का टाइम और इकोसिस्टम ही नहीं था। सो मेरा अनुभव ये है कि अगर लीडरशिप में पॉलिटिकल विल है और कमिटमेंट है कि लास्ट पॉइंट तक स्कीम्स चलना चाहिए, और जो वायदा हमने मैनिफेस्टो के द्वारा दिए 2014 में और 19 में, उसका पूरे करने का, पूरे करने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। उसको रेस्पेक्ट करते हुए एक लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उस टीम में काम करने का अनुभव, मुझे लगता है कि एक काम करने का शैली, पद्धति और तरीका नेशन को डेडिकेट करने वाले हैं। इसीलिए वही मेरा मन में रहता है कभी भी। अरुणिल, Ma'am, the discontinuation of rupees 2000 notes, how it has fared till now? The opposition basically has been saying that it was a complete failure, that introduction of 2000 denomination of notes was not at all needed. How do you look at it as a finance minister? Leave me looking at it as a finance minister. It's the Reserve Bank of India in its clean note policy has come up with this thing, saying we brought it in at the time of the demonetization because quickly there should be some remonetization happening. That's been explained by the RBI's press note itself. So now having that objective achieved, with already so many currency notes of 2000 category having already come into the system, but some which are remaining outside, and even by the lifespan calculation, the currency notes lifespan having been achieved, it's the Reserve Bank which is taking it back. So it's well within their business to do it. Ritvik. Ma'am, coincidentally, former finance minister P. Chidambaram is also addressing a press conference in Mumbai today, and what he's been saying about it is that the decision of introducing 2000 notes itself is a foolish decision, is what he said. So how do you react to it? And another point he has made is that British and American currency are there for over 100 years and the shelf life is for 5 years. So why was it taken back? Strictly, he knows very well that these are decisions being taken by the RBI on the 2000 note. So I should presume that these are questions asked of the RBI. They will be able to answer. So first thing first, currency is a sovereign business, and decision on the currency is taken by the central bank, and when it is a question of which is continuing to be legal tender, the government's permission is sought. So these are processes and due diligences which both RBI and the government will follow duly to cast aspersions on matters of this nature, currency, decision of a central bank, and to throw comparisons with other countries. Doesn't augur well for a finance minister who's seen it being in the ministry, and to very quickly judge something as being not good, it is foolish, it is wise. A government which lasted for 10 years, in which for a large part he was the finance minister. There are several questions which we have raised in the parliament. We have not had a substantial answer coming from them.
So I would think it is better for all of us to understand the situation and provide observations which behold people holding such office, which are, how can I put it, which are commensurate with the office that he held, and not be frivolous about commenting and judging things. In your presentation, you have mentioned many achievements of Modi government, but you as a finance minister, what you think are the two best things that you could was able to deliver or dedicate to the nation, particularly when other countries are facing or railing many global challenges? Well, I wouldn't want to personalize it as to it is my ministry, I'm the minister, I have achieved it. Government as a whole, under Prime Minister Modi's leadership, has worked keeping people's interest in mind. So I do not want to pick out one from a ministry as though other ministries have not done equally for the people of India. So all of us have worked together, and particularly during the COVID period, the title under which we are meeting here now very importantly speaks of Seva. It talks of Sushasan and Garib Kalyan. I'm so glad these three are the points on which each one of us ministers under the leadership of Prime Minister have constantly kept in our mind and designed programs, and more importantly executed each one of them. मैम एक सवाल सवाल सचिन हर चुनाव में चैलेंजेस होता है, और हर बार हर चुनाव को उस एरिया के जनता का हित को मन में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके इलेक्शन का तरीका बनाते हैं या उसमें रणनीति तय करते हैं. इसीलिए हम कर्नाटका को रिपीट करेंगे. जनता सुनने के बाद वो उनके मन में जिनको सपोर्ट करना है उनको सपोर्ट करते हैं. ये नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट दूसरे राज्य में भी चलता है. ये सब बोल सकते हैं. कांग्रेस जितने भी बोलते हैं उतना उनके अंदरूनी मामलों को एड्रेस नहीं करते हैं, दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. उनके पार्टी के विषय के ऊपर वो ध्यान देना चाहिए. राहुल सवाल ये है कि आप जिस दौर में मुंबई आई हैं, जिस वक्त में आई हैं, उससे पहले विपक्ष के कई सारे लीडर्स हैं वो लगातार मुंबई का दौरा कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, नीतीश कुमार आए, अलग अलग मीटिंग हो रही है उद्धव ठाकरे, शरद पवार से. और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दो तरह की बातें हो रही हैं. जो उनका कहना यह है कि 2024 के लिए वो एक विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. तमाम नॉन बीजेपी जो पार्टीज हैं उन सबको एक साथ एक मंच पर लाकर आपको हराने का दावा है. और दूसरा आपके ऊपर आरोप यह है कि आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हाईजैक कर लिया है. ये दो लगातार ये चीजें कॉमन है. मैं जानना चाहूंगा आपका इसके ऊपर क्या मानना है. नहीं, ऑपोजिशन उनके अपने एफर्ट्स को कैसे हैंडल करना, एक यूनिटी में आना, ये उनका काम है भाई. बीजेपी का काम नहीं है ऑपोजिशन को यूनाइट करके खड़े रख के उनको हमारे खिलाफ लड़ने के लिए. कोई भी पार्टी सत्ता में जो रहते हैं वो जनता के काम के ऊपर ध्यान रख के काम करते जाएंगे. ऑपोजिशन के काम है वो प्रश्न उठाए, जो भी क्रिटिसिज्म करना है करने, मगर ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड मेक देम स्ट्रांग एंड मेक देम फाइट अगेंस्ट मी. दैट्स नॉट माय बिजनेस. लेट देम डू इट. राहुल मैम आपसे एक सवाल राहुल एक प्रश्न विचारा. राहुल मैम एक सवाल पूछना चाहेंगे. एक प्रश्न विचारा.
राहुल राहुल मैम, आपने अभी बात की कि कैसे इन 9 वर्षों में मोदी सरकार जी ने काफ़ी जनता के हित में फैसले लिए। ऐसे ही एक फैसला है अनक्लेम्ड एसेट्स के ऊपर। तो क्या एक सेंट्रलाइज्ड आप प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं अनक्लेम्ड एसेट्स, ताकि लोगों को वो मिलना आसान हो? और दूसरा मैम, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि PSU बैंक्स की 2 PSU बैंक्स की आपने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इस बजट में बात की थी, उस प्लान के बारे में अगर आप बता पाएँ। अनक्लेम्ड एसेट्स के विषय बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर कोई बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या शेयर खरीद कर रखे, उसमें नॉमिनी का नाम नहीं है, तो वो नॉमिनी कौन हो सकता है, उनके लीगल इनहेरिटर्स कौन है, इनको ढूंढ करके उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके फिर विदाउट एनी फर्दर लिटिगेशन उसको पास करने का काम समय लगता है। इसीलिए उसको स्पीड अप करना, इट्स नॉट मी सिटिंग एंड से ओके गिव इट टू हिम बिकॉज ही इज सन ऑफ सो एंड सो. There can be several legal aspects which have to be completely satisfied, and then only the clearance of that money can happen. So it will take time. Let us not be under an illusion that ना if सरकार सोचती है तो कल ही क्लियर कर सकते, कल क्लियर नहीं कर सकते. इसीलिए मैं आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो या शेयर रख रहे हो, या आपके प्रॉपर्टी कोई लॉकर में हो, आपका नॉमिनी का नाम स्पष्ट डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए. नहीं तो वो ऐसे ही रह जाता है, उसको क्लियर करने के लिए सालों तक चलता है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज विच विल बी ब्रॉट इन. सो उसका एक मिनट मैं खत्म करूं, प्रश्नाचं उत्तर देऊ द्या. एक मिनिट. मैं उसका आई एम टॉकिंग विद ऑल द कंसर्न्ड रेगुलेटर्स and asking them to have special drive and campaign done so that these monies can reach the people who lawfully should get it. So that's the first thing. The second question that you asked about the bank privatizations, they will go on as per schedule, and there is no other change in it. राहुल नहीं, मैं कंप्लीटली आपका बातों को मानने को तैयार नहीं हूँ, मगर उसमें सच्चाई भी हो सकता है. मगर इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी 1 महीने में एक बार प्रगति कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जिला स्तर के अधिकारीगण को भी वाया VC बुला करके उस जिले में क्या कितना आगे बढ़ रही है हर एक स्कीम, ये एक रास्ता है. दूसरा रास्ता, 116 जिला ऐसे चुनने गए जिसमें और काम करने का था. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम दे करके उनका पिछड़ापन को कम करने के लिए और हर एक स्कीम में सैचुरेशन पोजीशन रीच करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम हुआ. उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आगे भी आए और इन सम ऑफ देम वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स हैपेंड फॉर द गुड. अभी वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम और नीचे के ओर जाकर के एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम हो रही है. मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सैचुरेशन अचीव करने के बाद अभी ब्लॉक स्तर पर अचीव करने के लिए प्रयत्न चल रही है. इसीलिए जहां कमी है वहां भरपाई करने के लिए और मेहनत हो रही है. विनोद जी मेरा सवाल पीएम स्वनिधि से लेके है. मैं ये जानना चाह रहा था. अभिषेक एक मिनट. एक मिनिट त्याच्यानंतर तुम्हीच विचारा. अभिषेक. मेरा सवाल पीएम स्वनिधि को लेके है. देश में टोटल जितने लाभार्थी हैं उसके 25% उत्तर प्रदेश में है, 15% MP में है. महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे सिर्फ 9% है. आपको लगता है कि यहाँ पे डबल डिजिट का ग्रोथ होना चाहिए या इतना कम से कम रहना? नहीं, एक मिनट, ये इसमें डबल इंजन सरकार, एक इंजन सरकार के विषय नहीं है भैया. अगर लोकली राजनीतिक नेतागण एक स्तर पर
आप भी जा करके स्वनिधि में मेरा बगल वाले को मिलना चाहिए, इनको दे दो करके आप अगर बैंक को अप्रोच करोगे, उनको भी मिलेगा। इसमें एक्सक्लूशन का प्रिंसिपल नहीं है। जितने लोग एलिजिबल है उतना ले आओ, हम सबको देने के लिए तैयार है। अगर लोकल स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी जाए, बैंक देने का है, बैंक इनकार कर नहीं सकते। इसीलिए डबल इंजन सरकार के विषय अलग विषय है, उसके ऊपर मैं महाराष्ट्र के विषय में बात करूंगी, मगर ये स्वनिधि के विषय में जहां भी बैंक के पास कोई जाने में ही तुरंत उनको मिलेगा। आप अभी भी अगर कोई आपका जानकारी में है तो मुझे डेटा दे दीजिए, मैं जरूर देख लूंगी उसको। मैम अभिषेक बोल रहा हूँ। इसमें एक जानकारी, बहुत मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा। पीएम स्वनिधि शुरू हुआ कोविड के समय, हमारे जो फेरी वाले हैं ये जो तकलीफ में आए थे इनको मदद करने के लिए, लेकिन तब की उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने ऑफिशियल डिसीजन लिया कि हम पीएम स्वनिधि नहीं करेंगे, और एक भी फेरी वाले को एक नया पैसा उद्धव जी की सरकार ने नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस निर्णय को बदला, पीएम स्वनिधि शुरू किया, और सबसे पहला ड्राइव मुंबई में किया, और एक ही दिन मुंबई के 1 लाख फेरी वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से उनके अकाउंट में स्वनिधि दिया। और केवल इतना ही नहीं, ये 1 लाख लोगों को हमने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ट्रेन किया, और आज वो लोग, उनमें से अधिकांश लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 9% आप कह रहे हो, ये केवल पिछले 6 महीने का है, 2.5 साल सरकार ने कुछ किया नहीं है। मैम अभिषेक बोल रहा हूँ। एक सवाल ये है कि 9 साल पूरे हुए हैं, आपने उपलब्धियां बताई है, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल शुरू हो रहा है और विपक्ष लगातार आप पर हमले करेगा, तो पिछले 9 साल के भीतर जो भी खामियां विपक्ष लगातार लेकर सड़कों पर उतरा, अब वो फिर से लोगों के बीच में जा रहा है और जाने की प्लानिंग कर रहा है। इसको कैसे काउंटर करेंगी? और अगले इन्फ्लुएशंस भी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। चाहे कौन सी इन्फ्लुएशंस, मतलब हाँ, इसको कैसे? इन्फ्लेशन का डेटा शायद आपके पास नहीं हो, मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। ऑलरेडी वो 4.8 तक पहुंच रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स तो क्लोजर टू नेगेटिव टेरिटरी। मैं सिर्फ नंबर के आधार से नहीं बात कर रही हूँ, हम देश भर से लोकल मार्केट में क्या आज का भाव है, आलू का हो, प्याज का हो, दूध का हो, कुछ और का हो, सब डेटा कलेक्ट करते हैं। और जहां इंटरवेंशन का जरूरत है, जैसे कि जब गेहूं का प्राइस बढ़ा, गेहूं का मार्केट में प्राइस बढ़ने के समय तुरंत बफर स्टॉक से रिलीज करके, क्योंकि रिलीज हुआ जल्दी, गेहूं का दाम कम भी हुआ। ऐसे करके इंटरवेंशन जहां करना है वो करते आ रहे हैं। इसीलिए हम निगरानी रखेंगे, आने वाले दिन में भी निगरानी रखेंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर एकमात्र भी हमारी निगरानी कम नहीं हुआ। कांग्रेस ने लीगली अपने मैनिफेस्टो में, या फिर मध्य प्रदेश को लेकर के एक मैनिफेस्टो, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम सारे, कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, इस तरीके के वादे चाहे वो राजस्थान में किए गए, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। इसको कैसे काउंटर करें? ठीक है, काउंटर करेंगे ना। सोनू, शेवटचा प्रश्न मैम, शेवटचा प्रश्न मैम हियर, सोनू हियर। मैम शेवटचा प्रश्न। आपने कहा कि 9 सालों में आपकी सरकार ने जो भी आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, 2014 का हो या 2019 का, पूरा किया गया। लेकिन इन वादों में जो कहा गया था 2019 में कि किसान का इनकम 2022 तक डबल हो जाएगा, वो होता हुआ दिखा नहीं। क्या वो पोस्ट अब 2024 में होगा या 2026 में? नहीं, एक मिनट। किसान का आय दुगुनी होना, इसका ओवरनाइट हम कर देंगे, ऐसे नहीं किया। एक मिनट। और दुगुनी होने का रास्ता बहुत सारे अपनाया। मैं सिर्फ आपके लिए ये जानकारी देना चाह रही हूँ कि आज भारत देश में ये 6,000 रुपया सम्मान दे रहे हैं,
फर्टिलाइजर प्राइस जब 3 गुना बढ़ा, उनको बढ़ने नहीं दिया, वो राहत भी दिए, वो सब। और सीड्स के बारे में स्लाइड में भी है, जो बीज उनको मिलना चाहिए सस्ते में, अच्छा क्वालिटी सीड्स, वो भी। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम के रास्ते के द्वारा उनका खर्च कम करने के लिए बहुत मेहनत हो रही है। मगर ये भी देखने लायक है, इन द नेम ऑफ इनकम डबलिंग, आज भारत देश वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। दूध वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बनाना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वीट वर्ल्ड में 3rd और 4th पोजीशन है, राइस वर्ल्ड में 2nd और 3rd पोजीशन है, हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स इंडिया इज बिकमिंग द 2nd लार्जेस्ट। ये सब किसान के हित में ही और उनके मेहनत के वजह से ही इतना दूर चल रही है। और जब एक्सपोर्ट होते हैं, उनको वही क्रॉप के लिए, वही फसल के लिए जो दाम भारत में मिलता है, उससे अधिक मात्रा में उनको इनकम मिलता है जब एक्सपोर्ट होते हैं। ये सब बिना सपोर्ट नहीं होता, और इनके वजह से। और महाराष्ट्र में फ्रूट्स का भंडार है, नासिक के क्षेत्र से कितने सारे फ्रूट्स आज एक्सपोर्ट में जा रही है। ये सब सरकार के मदद के बिना हो सकता है क्या? इसीलिए हम दोगुनी बात करने के समय सिर्फ बैंक के अकाउंट में सरकार से कितना जा रहे इसका कैलकुलेशन नहीं, सरकार के सहूलियत और फैसिलिटेशन के वजह से कितना हो रहे इसका भी सोचना चाहिए। और फील्ड्स में सोलर पैनल रख के एनर्जी कंजम्पशन उनका जितना चाहिए उतना उठाने के बाद उसको ग्रिड में लिंक करके उससे भी कमाई उनको मिलता है। आज किसान का पंप का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम हो गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे किसान को एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा आज वो बात भी, फिशरीज का बात भी मैं बोलना चाह रही हूँ। आज इफ द नंबर इज राइट, 56 lakh tons of fish were produced till 2014. 56 लाख टन 2014 तक, मतलब 63 years में हम 56 लाख टन फिश मैन्युफैक्चर मतलब पकड़ते थे। आज ये 9 साल में वो एडिशनली 101 लाख टन्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 101 लाख टन आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 63 इयर्स में 53 तक ही पहुंचा, अब 56 तक ही पहुंचा, अभी 101 तक पहुंच गए। ये सब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है? क्योंकि सस्ते क्रेडिट मिल रही है फार्मर को, ब्याज इतना देने का आवश्यकता नहीं है, पहले जैसे सरकार उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। और एनिमल हस्बेंड्री में हर ब्लॉक में वेटनरी डॉक्टर पहुंच करके उसका कॉस्ट भी हम खर्च कम कर रहे हैं। और एनिमल हस्बेंड्री अच्छा रह रही है, इसीलिए आज मिल्क प्रोडक्शन में इतना ऊंचा तक पहुंचे। ये सब भी किसान के हित में ही है ना। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।